Hello everyone, this is Manoj Pandey and I welcome you all in this video. Students, today we are going to start our second chapter of history. In our previous chapter, I meant to say our first chapter we have read how, when and where. We have understood what is history, how we divide it into different category, how we divide it to in different time periods. So now we are going to start second chapter which is known as from state to territory. Students, as you all know, in our sixth class history, we have read about ancient history. In seventh class history, we have read about medieval period history, and now, because we are in class eighth, so we will understood the modern history. Modern history start from the death of Aurangzeb. So we'll understand what incident took places after the death of Aurangzeb, what changes happened in India, its territory, and in the society. So let's not waste our time and start our chapter. Students, as you can see, our chapter name is From State to Territory. So we will understand that how the Britishers, or we can say European powers, came to India for trade purpose, and how they control on Indian territory. We'll understand in this chapter. Now, the first question come into our mind that who was the first European who came in India? So we all know that Vasco da Gama was the first person who searched India, who searched the route for India, we can say, and especially route, ocean routes, we can say sea route. There was already route, but as we know, Turkish has controlled that route. So for European people, it was impossible to come India through the land route. So they felt that the need of sea routes so that they could come in India for business purpose easily. So let's uh, sorry, as you know, Vasco da Gama was the first person, and Vasco da Gama came into India in 1498. 1498, and Vasco da Gama was from Portugal. He was Portuguese. So we can say that Portuguese was the first person who came to India in 1498. After Portuguese, Dutchess came to India, and then Britishers, English came to India, and after that, France. I mean, French people also come to India. So this was the uh, serial coming there to India. So let's start our chapter now. In the starting, in the starting, there is a discussion about Aurangzeb. I have told you in the starting that Aurangzeb was the last powerful Mughal ruler. After the death of Aurangzeb, we start modern history. And when he died in 1707. जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद उसके जो सक्सेसर हुए, ऐसा नहीं है कि ही वॉज द लास्ट रूलर, ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. उसके बाद भी रूलर्स आए, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना पावरफुल औरंगजेब और उसके पहले उसके फादर शाहजहाँ, फिर उनके फादर जहांगीर, फिर उनके फादर अकबर एंड उनके फादर हुमायूं और उनके फादर बाबर. तो स्टार्टिंग जो छः किंग हुए हैं, आप लोगों को पता है मुगल डायनेस्टी के बारे में. फिर से एक बार आपको बता देता हूँ. मुगल डायनेस्टी में सबसे पहले बाबर किंग बना. After the death of Babur, his son Humayun became the king. After the book Humayun, Akbar became the king. After Akbar, Jahangir, then Shah Jahan, then Aurangzeb. So Aurangzeb was the last powerful ruler of Mughal dynasty. जैसे उसकी डेथ हुई, उसके बाद उसकी जो टेरिटरी जो थी मुगल डायनेस्टी की, जो टेरिटरी होती थी, आप लोगों को पता है उसकी जो टेरिटरी थी मुगल डायनेस्टी की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी. तो उसने क्या किया था, अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर रखा था. तो बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे मुर्शिद कुली खान. ठीक है, उनके बारे में आगे चैप्टर में बताया गया, मैं आपको बाद में बताता हूँ. तो तो फिर क्या हुआ, फिर जो उनके जो रूलर थे, उनके जो सक्सेसर हुए, औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर हुए, वो इतने पावरफुल नहीं थे.
ठीक है। वो लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो दिल्ली से, मतलब दिल्ली क्योंकि उनकी कैपिटल होती थी, कभी आगरा भी रही है, कभी दिल्ली रही है, कभी लाहौर भी रही है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन बाद के जो किंग हुए हैं वो दिल्ली से ही रूल करते थे, दिल्ली कैपिटल हुआ करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उनके लिए था कि वो दिल्ली से इतने बड़े टेरिटरी पर वो रूल कर सकें सही तरीके से। तो धीरे धीरे जो उनके गवर्नर जो होते थे अलग अलग पार्ट में, वो अपने आप को क्या करने लगे, वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। जब तक औरंगजेब वगैरह थे, जो ग्रेट किंग हुए थे, जो ताकतवर, जो पावरफुल राजा हुए थे, तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर सके। वो लोग मुगल के अंडर ही काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, उसके जो सक्सेसर हुए बहुत कमज़ोर हुए, वीक हो गए, आपस में ही लड़ने लगे। तो फिर जो अलग अलग पार्ट के जो गवर्नर होते थे, जो छोटे छोटे राजा होते थे कह सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे ही 18वीं शताब्दी का जो आधा हिस्सा बीता, यानी कह सकते हैं 1750 के बाद का एरा कह सकते हैं, तो क्या होने लगा, अब सेंटर में नई पावर का उदय होना शुरू हुआ। यानी अब नई पावर जनरेट, जैसे मुगल अब तक पावरफुल थे कंट्री में, तो अब नई पावर क्या होने लगी, राइज करने लगी, आने लगी सेंटर में, भारत में कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे बताया गया कि ब्रिटिश जो थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्यों आए थे इंडिया पर, इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। उनका पर्पस बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर वो आकर के टेरिटरी को, यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ के जो स्टेट्स हैं, उनको एक्वायर करें। उनका ऐसा पर्पस बिल्कुल भी नहीं था। उनका केवल एकमात्र पर्पस था कि वो यहाँ आकर के ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर उन लोगों को मतलब ट्रेड तो पहले ही होता था। आप लोगों को बात याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि यूरोप से आने वाला यूरोप से पहले लोग नहीं आते थे इंडिया, आते थे, ठीक है, यूरोप से लोग आते थे, लेकिन उनका जो मार्ग होता था, जो रास्ता होता था, वो लैंड रोड से आते थे, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि लैंड रोड पर जो टर्किश लोग थे, उन्होंने अटैक कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो यूरोपियन को उन्होंने मना कर दिया था कि आप नहीं आ सकते इंडिया उस रूट से, ठीक है। तब जा कर के क्या हुआ था, सब लोगों ने खोजा समुद्र से रास्ता, ठीक है। तो पहले ही भी व्यापार होता था, तो इसलिए वो लोग चाहते थे बिज़नेस होता रहा यहाँ से इंडिया से, तो वो बिज़नेस के पर्पज़ से ही वो इंडिया आए थे। तो फिर हम ये कैसे हुआ कि उन्होंने ट्रेड छोड़ करके, मतलब ट्रेड तो किया ही किया, ट्रेड के अलावा उन्होंने किस तरीके से टेरिटरी एक्वायर करने लगी, वो हम लोग आगे इस चैप्टर में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही हो, कुछ सॉन्ग अगर सुनाई दे रहा हो, डिवोशनल सॉन्ग, तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बगल में कुछ धार्मिक कार्य हो रहा है। तो इस वजह से घर में ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ पर आपके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर सकूँ और वॉइस ना आए, क्योंकि नेबर में ही हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वॉइस तो क्लियर आ ही रही होगी, बैकग्राउंड में हल्की सी वॉइस आ रही होगी, क्योंकि मैंने डोर बंद कर रखा है, सारी जो खिड़कियाँ उनको भी बंद कर रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं उनको भी आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ आई डोंट थिंक कि अभी ये डिस्कस करना यहाँ पे सही होगा। अभी आगे जब हम लोग थोड़ा चैप्टर में आगे समझ लेंगे जो इंसिडेंट हुए थे, तब जा कर के हमारे लिए ईजी हो जाएगा इन चैप्टर्स को, इन इमेजेस को भी समझना। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स इंडिया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर के जरिए कि किस तरीके से उन्होंने रूट को फाउंड किया था इंडिया आने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे नॉर्थ में आप लोग देख सकते हैं, ऊपर के साइड देख सकते हैं कि ब्रिटिश आइलैंड है, यानी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कंट्री, यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे। अब वो सबसे पहले कहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके नीचे क्या है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर है। तो वो सबसे पहले आए साउथ में, सबसे नीचे साउथ में केप ऑफ गुड होप है, ठीक है। सबसे पहले वो लोग केप ऑफ गुड होप आए, फिर वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा स्टे किया, स्टे करने के बाद फिर वापस वो इंडिया आए। इंडिया वहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा किस जगह पर आया था, वो आया था केरल के कालीकट जो था बंदरगाह, वहाँ पर वो सबसे पहले आया था। तो इस तरीके से वो लोग आते थे। तो यूरोप से सबसे पहले आते थे केप ऑफ गुड ऑफ अफ्रीका, फिर अगर आते थे वो लोग इंडिया, इस तरीके से उन्होंने वो आते थे इंडिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि उनका क्रम क्या था आने का इंडिया में यूरोपियंस का, तो आपको बताना है पीडीएफ। पीडीएफ के ज़रिए आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि पीडीएफ यानी पी से पोर्चुगीज़, डी से डचेस, ई से इंग्लिश एंड देन फ्रेंच, ठीक है। पीडीईएफ, पीडीएफ नहीं, पीडीईएफ, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेबलेशन कैसे हुआ था वो लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1600 में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, और उनको क्या मिला था, इंग्लैंड की जो रूलर थे,
ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके ज़रिए उनको एक चार्टर मिला था, यानी एक एक पत्र मिला था कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें उनको राइट दिया गया था कि आप जाइए, ठीक है, ईस्ट के साथ आप क्या करिए, ट्रेड करिए। अब ईस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, केवल इंडिया नहीं बल्कि इंडिया के अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ईस्ट में, तो आप वहाँ पर जा करके आप क्या कर सकते हैं, एक सॉरी वहाँ पर जाकर के आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक कंपनी था, ठीक है, एक ट्रेडिंग कंपनी कह सकते हैं। तो वो उनको ये राइट मिल गया था, उनको ये अधिकार मिल गया था, उनको मोनोपोली मिल गई थी, बेसिकली कह सकते हैं कि वही इंग्लैंड से यानी ब्रिटिश से केवल एकमात्र वही कंपनी थी जो इंडिया जा कर के बिज़नेस कर सकती थी, ट्रेड कर सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन से कोई और कंट्री जा कर के वहाँ पर ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। हाँ, यूरोप की जो अदर कंट्रीज़ है, जैसे फ्रांस से लोग जा सकते थे, पुर्तगाल से लोग जा सकते थे, डच लोग जा सकते थे, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जा सकती थी। अब क्योंकि उनको ये राइट मिल गया था कि वो ईस्ट के साथ बिज़नेस कर सकते थे, तो उनके लिए कोई खतरा नहीं था, कि उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था अपनी कंट्री से, ब्रिटेन से उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं था कि कोई और आकर के उनके बिज़नेस को मतलब हार्म कर सकता है, यानी कॉम्पिटिशन बढ़ा सकता है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स को तो अलाउड नहीं था कि वो आकर के अदर कंपनी को कि आकर के बिज़नेस कर सके, लेकिन यूरोपियन को अलाउड था। तो यूरोपियन जो थे, जो अदर कंट्रीज़ थे, वो कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स के लिए खतरा थे। तो क्या होने लगा, दोनों सब लोग इंडिया में आकर के जब वो लोग बिज़नेस करना शुरू कर दिए, जब मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश कर दिए। अब मर्सेंटाइल यहाँ पर वर्ड है, मर्सेंटाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा एंटरप्राइज़ जो क्या करे, जो प्रॉफ़िट के पर्पज़ से बिज़नेस करे, ट्रेड करता हो, ठीक है? यानी जो गुड्स होते थे वो चीप रेट पर खरीदे, ठीक है? और फिर उससे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसको हाई रेट्स पर यानी महँगे दामों पर बेचे, यानी कोई चीज़ सस्ते में खरीद करके और उससे जो भी चीज़ बनती है उसको प्रोड्यूस करके उसके बाद उसको महँगे रेट पर बेचे। तो उसको कह सकते हैं, ऐसी कंपनी को कहते हैं मर्सेंटाइल। तो उनको तो अपने कंट्रीज़ के लोगों से खतरा नहीं था, लेकिन जो फ्रांस होते थे, फ्रेंच लोगों से और पुर्तगीज़ से, इन सब से खतरा होता था। तो क्या होने लगा, इंडिया में वो लोग आपस में ही लड़ने लगे। लड़ने क्यों लगे? ताकि उनको हक मिल जाए बिज़नेस करने का अकेले भारत में, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉस्पर कंट्री हुआ करता था। अभी भी एक तरीके से है कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम और भी ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था, और ख़ास करके यहाँ के जो स्पाइसेस होते थे और जो कॉटन सिल्क के जो कपड़े होते थे, उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिलते थे, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे कॉटन सिल्क वगैरह हो, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिलते थे। तो इसके लिए क्या करने लगे, सब लोग आपस में ही लड़ाइयाँ करने लगे। तो उन लोगों का आपस में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई आपस में ही। लेकिन इन सभी पावर्स में, इन सभी यूरोपियन पावर्स में, यानी पुर्तगाल, फ्रांस, डच और इंग्लिश, इन सब में सबसे पावरफुल बन करके टाइम के साथ कौन उभरा? इन सब के साथ टाइम के साथ सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर के उभरा ब्रिटेन, यानी अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर के उभरे। धीरे धीरे वो लोग अलग अलग युद्ध में क्या करने लगे, इनको डिफीट करने लगे। और फ्रांस का, पुर्तगाल का, डच को तो खैर इंडिया छोड़ के ही जाना पड़ा था, लेकिन फ्रांस और पुर्तगाल इंडिया में रहे भी, तो वो कहाँ रहे, आइलैंड वाले पार्ट्स में, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी टेरिटरी में वो बिज़नेस करने को मजबूर हो गए। लेकिन ज़्यादातर जो राइट मिला, जीत हुई, वो किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की हुई, ठीक है। तो चलिए, फिर इसमें बताया गया कि किस तरीके से वास्को डी गामा ने 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया था, तो हम लोगों ने जान ही लिया। और बताया गया कि इंडियन ओशियन से बिजनेस भी शुरू हो गया, ट्रेड शुरू हो गया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि किस तरीके से कॉटन, सिल्क और यहाँ के जो मसाले होते थे, जैसे पेपर्स हो गए, कार्डमम हो गई, ये सब कितने ज़्यादा डिमांड में थे ब्रिटिश में। अब सवाल उठता है कि वो लोग स्पाइसेस का करते क्या थे। इतने सारे स्पाइसेस का वो क्या करते थे, स्पाइसेस काम आती थी मीट को कंजर्व करने के लिए। वो लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है यूरोपियन मीट का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो मीट को अगर लंबे समय तक उसको कंजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है, सेफली उसको रखना है, तो फिर उसके लिए जो स्पाइसेस काफ़ी हेल्पफुल होती थी। तो स्पाइसेस क्या करती थी, मीट को ख़राब नहीं होने देती थी, तो इसलिए उनको स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरीके से सब सारी कंपनी आपस में लड़ने लगी, और अंत में सबसे ज़्यादा पावरफुल बन के निकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सभी लोग, जो कंपनी होती थी वो नॉर्मली उनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता था, लेकिन उसके आगे वो अपनी कंट्री का नाम जोड़ लेती थी, जैसे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह से ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी वो कराती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल बनकर उभरी, और उनका जो स्टार्टिंग में पर्पस था वो था ट्रेड करना।
फिर आगे किस तरीके से उन्होंने टेरिटरी पर यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू किया वो हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर में। अब सबसे पहले ट्रेड की शुरुआत उन्होंने की थी बंगाल से। बंगाल में उन्होंने ट्रेड करने की शुरुआत की थी। अब चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड जो था वो बैटल के रूप में किस तरीके से बदल गई, बैटल किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत हुई। यहाँ पर आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स के काफ़ी सारे बैटल्स इंडिया में आकर के वो लड़े थे, तो किस तरीके से उन्होंने बैटल्स लड़नी शुरू कर दी थी वो हम लोग इस मतलब आगे जानते हैं। तो आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे क्या होने लगा था, कंपनीज, ठीक है, प्रॉफिट तो वो लोग कमाना शुरू कर दिए थे इंडिया से। जो स्पाइसेस होते थे, कॉटन सिल्क वगैरह जो होते थे वो इंडिया से ले जाते थे वो यूरोप में अपनी कंट्री में, और वहाँ पर जा करके वो क्या करते थे, उससे प्रोडक्ट तैयार करते थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगे दामों में वहाँ पर बेचा करते थे। तो इससे उनको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वो लोग, अब उनके मन में लालच जाग गया था, ठीक है, ग्रीड आ गया था कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने का यहाँ पर उनको राइट मिले। तो धीरे धीरे क्या होने लगा था, ब्रिटिशर्स के बीच में और बंगाल बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में क्या होने लगा था, क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए थे। अब सबसे पहले अभी हमने बात की थी कि किस तरीके से जो अलग अलग जो पार्ट्स होते थे मुग़ल डायनेस्टी के अंतर्गत जो आते थे वो अपने आप को औरंगजेब की डेथ के बाद अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उन्होंने अपने आप को ऑटोनॉमी उन्होंने घोषित कर दी थी अपनी। तो इसी में से बंगाल का जो राजा था, उस समय नवाब था, वो कौन था, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान की डेथ के बाद अलीवर्दी खान वहाँ का नवाब बना, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना। तो आप लोग को याद रखना है कि बंगाल का संस्थापक किसको माना जाता है, माना जाता है मुर्शीद कुली खान को। फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बना अलीवर्दी खान, और फिर सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना, यानी वहाँ का किंग बना। तो ये जो तीनों रूलर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, बहुत मजबूत हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सॉरी, आप लोगों को पहले बता दिया जाए कि जो जब ये व्यापार करने आए थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स को उनको फरमान मिल गया था औरंगजेब के जरिए, ठीक है। औरंगजेब ने उनको ये राइट दे दिया था कि ठीक है, आप यहाँ आए, आप बिज़नेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पर ट्रेड करिए, हम आपको फ्री ट्रेड का वो राइट देते हैं, यानी आपको कोई टैक्स आप मुझको पे नहीं करना होगा, ठीक है, कंपनी को, ठीक है, लोगों को, ठीक है। ब्रिटिशर्स को उन्होंने, अंग्रेज़ों को, इंडिविजुअल्स को, यानी पर्सन, अलग अलग पर्सन को उन्होंने राइट नहीं दिया था कि आप लोग अपना अलग अलग बिजनेस शुरू करिए, हमको कोई भी आप टैक्स मत दीजिए। उन्होंने कंपनी को ये राइट दिया था कि अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ठीक है, आप यहाँ पर आए हैं तो आपको ट्रेड करने का बंगाल में आपको छूट देते हैं कि आप टैक्स मत पे करिए, आप ट्रेड करिए। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे थे इन्होंने, अपनी धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना, ब्रिटिशर्स की जो कह सकते हैं महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, वो जागने लगी, मतलब जो लालच था वो बढ़ने लगा। तो वो लोग क्या करने लगे, उनके जो ऑफिसर्स होते थे वो अपना अलग व्यापार करने लगे, यानी कंपनी का तो व्यापार चल ही रहा है और उसके लिए कोई टैक्स नहीं पे करे, लेकिन ये लोग क्या करने लगे, अपना अलग व्यापार करने लगे और उसके लिए कोई टैक्स नहीं देने लगे। तो इससे क्या हो गए, और उन्होंने क्या करने लगे, अपना अपना अलग अलग वो बना सॉरी फैक्ट्री बनाने लगे। फैक्ट्री के चारों तरफ वो अपना घर बसा करके रहने लगे। और तो और उन्होंने क्या कर दिया, उसके चारों तरफ किले बनाने शुरू कर दिए, फोर्ट बनाने शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन का काम शुरू कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से औरंगजेब ने जो फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को कि आप बंगाल में आप टैक्स फ्री आप पेड कर सकते हैं, तो उसका किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से, उनके जो ऑफिशियल थे उन्होंने किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करने लगा, उनके फरमान को, उनके ऑर्डर को किस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और अपना पर्सनल एजेंडा वहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम बदला प्लासी के बैटल के रूप में। प्लासी का बैटल किस तरीके से हुआ था, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका रिजल्ट क्या निकला था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि मुझे आइडिया है, मुझे डाउट है कि शायद आप लोगों को वॉइस मेरी उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, बिकॉज ऑफ मैंने बताया है कि बगल में जो कुछ कार्यक्रम चल रहा है उसकी वजह से, और अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है, तो बारिश की भी कुछ साउंड आपको शायद आ रही होगी वीडियो में। तो फिर हम अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए क्लास थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, छोटा ही रखते हैं, ठीक है। आज के क्लास के रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के, या फिर सोशल मीडिया पर, या फिर मुझसे पर्सनली ही आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो बैटल्स किस तरीके से लड़ते गए और किस तरीके से इंडिया की टेरिटरी को एक्वायर करते गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।